نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ متفق علیہ۔ میرے انتہائی قابل قدر سامعین، دل کب بنتا ہے اور کب بگڑتا ہے، اس عنوان پہ اللہ کے نبی نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس روایت کا ترجمہ عن نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ قال، یہ صحابی رسول ہیں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں اور حضور اسلام سے وہ روایت کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، ان مشتبہ چیزوں کو راسخ علماء فقہا کے علاوہ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقی شبہات، اب ان شبہات سے، ان مشتبہات چیزوں سے جو انسان اپنے آپ کو بچا لے گا، استبراء لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کر لے گا اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لے گا۔ مشتبہ چیزوں میں نہ پڑ کر وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لے گا۔ اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور ان مشتبہ چیزوں میں جو انسان واقع ہو گیا، وقع فی الحرام، یہ حرام کے اندر واقع ہو جائے گا، حرام میں مبتلا ہو جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آگے مثال دے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قراعی، جس طرح ایک بکریاں چرانے والا چرواہ ہو، یرعا حول الحما، وہ ممنوع علاقے کے ارد گرد بکریوں کو لے جائے۔ ایسا علاقہ جس علاقے سے جانوروں کو روکا ہوا ہو، جس علاقے میں بکریوں کو روکا ہوا ہو، اس علاقے کے بالکل قریب لے جا کر وہ بکریوں کو چرواتا ہے۔ تو اب آگے فرمایا، یوشک ان یرتع فیہ، بہت زیادہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے وہ جانور، اس کی وہ بکریاں اس ممنوع علاقے کے اندر گھس جائیں۔ اس کو چاہیے یہ کہ وہ اس ممنوع علاقے کے قریب ہی نہ جائے۔ قریب جائے گا تو قریب جانے کے بعد مبتلا ہو جانا یہ بہت یقینی ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ قریب گیا تو قریب جانے کے بعد لازماً یہ اس جگہ کے اندر بھی اس کے جانور ممنوع علاقے میں واقع ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کہیں یہ سزا کا مستحق نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا، الا، غور سے سن لیجئے، توجہ سے سن لیجئے، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ اور مالک کے لیے بعض ممنوع علاقے ہوتے ہیں۔ الا، پھر سن لیجئے، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ کے ہاں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس کے محارم ہیں، جو ممنوع چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے اندر نہیں پڑنا۔ الا، آگے پھر متوجہ کر کے فرمایا، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا ہے،
इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु, जब वो गोश्त का लोथड़ा और वो टुकड़ा दुरुस्त होगा तो उसकी वजह से पूरे का पूरा जिस्म इंसान का दुरुस्त होगा। व इज़ा फसदत फसद जसद कुल्लुहु, और अगर उस गोश्त के लोथड़े में, उस गोश्त के टुकड़े में अगर फसाद आ गया, वो ख़राब हो गया, तो इंसान का पूरा जिस्म, पूरा जसद इंसान का ये ख़राब हो जाएगा। अला वहियल क़ल्ब, गौर से सुन लीजिए कि वो गोश्त का लोथड़ा इंसान का दिल है, वो गोश्त का लोथड़ा इंसान का दिल है। इस रवायत के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी दिल के मुताल्लिक़ बड़ी तफसील के साथ और इंसानी दिल की कैफियत के मुताल्लिक़ बड़ी तफसील के साथ बात फरमा दी। हलाल और हराम का और उससे हराम से बचने की तरगीब बड़ी तफसील के साथ दे ली है। पहले नंबर पे इस रवायत में जिस तरह फरमा दिया कि ये अल्लाह की हराम की हुई चीज़ें भी वाज़े हैं, अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें भी बिल्कुल वाज़े हैं, और उसके बाद फरमा दिया कि हराम के करीब और शुबात इनके दरमियान, यानी हलाल और हराम को जोड़ने वाली जो चीज़ है वो बाज़ बीच में शुबहात आ जाते हैं, उन शुबहात में मुब्तला नहीं होना। क्यों? अगर उन शुबहात में मुब्तला हो गए, मुश्तबे चीज़ों के अंदर इंसान मुब्तला हो गया, मुमकिन है कि हराम में दाखिल न हो जाए। उस पर मिसाल भी दे ली, और आगे दिल की मिसाल बड़ी वजाहत के साथ दी। जिस तरह एक लश्कर हो और उस लश्कर का एक कमानदार हो, बादशाह हो, उसका एक चलाने वाला हो। अब देखें, वो सारे का सारा लश्कर उस कमानदार के कंट्रोल में होता है, उसके हुक्म का मुंतज़िर होता है। वो जो हुक्म करता है, लश्कर का हर फर्द, हर लश्कर का फ़र्द और मुजाहिद उसकी बात को पूरा करने के लिए दिलो जान से तैयार होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर अज़ा व जवारिह अगर ये लश्कर की मानद हैं, तो इसको कंट्रोल करने वाला दिल पीछे मौजूद है। वो दिल इंसान के सारे अज़ा व जवारिह के तमाम उमूर को कंट्रोल करता है। हाथों ने क्या काम करना है, पीछे फैसला दिल का होता है। आँखों ने क्या देखना है, फैसला पीछे दिल का होता है। पाँव ने किधर चलना है, उन्होंने उस दिल के हुक्म को, और ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हम दुनिया के अंदर इस तरह के कई जुमले बोलते हैं, मेरे दिल ने यूँ कहा तो मैंने यूँ कर दिया। ये सारे जुमले ये इस बात पे दलालत कर रहे होते हैं कि पीछे ये दिल ये सरदारी कर रहा है। दूसरी मिसाल उलमा ने बयान की है, जिस तरह रेल का इंजन डब्बों की जिस तरफ होगा, वो जिस तरफ डब्बों को खींचेगा उधर ही बाकी सारे डब्बे भी चलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह कि इंसान के जिस्म के अंदर ये जो दिल है, ये जिस तरफ आज़ा व जवारे को खींचता है, पूरे के पूरे इंसान, पूरे का पूरा इंसान उन्हीं कामों में मुब्तला हो जाता है। तो इसलिए ये दिल की चंद मिसालें बयान की। अब दूसरी बात यह है कि देखें, गोश्त का एक टुकड़ा है दिल भी। इंसानी जिस्म के अंदर सारे आज़ा भी गोश्त के टुकड़े हैं, लेकिन उसकी कुछ खुसूसियात अलग हैं। उस गोश्त के टुकड़े के अंदर अल्लाह ने कुछ अलग से खुसूसियात रख दी हैं। वो खुसूसियात कैसी हैं? देखें, ईमान इंसान का मजबूत है, उसका तहल्लुक भी उसी गोश्त के लोथड़े के साथ है। इसका यकीन जितना पुख्ता है, उस यकीन के पुख्ता होने का ताल्लुक भी अल्लाह ने उसी के साथ जोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ने इसमें सलाहियतें कुछ दीगर गोश्त के टुकड़ों और गोश्त से बिल्कुल जुदा सलाहियतें इसके अंदर रख दी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ने। तो इस वजह से ये चूँकि मरकज़ है, ये इंसानी जिस्म का मरकज़ है, और मरकज़ की तरफ हर चीज़ मरकूज़ होती है, हर चीज़ का ज़ोर मरकज़ की आता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, जब यह सही होगा तो इसकी वजह से इस मरकज़ से निकलने वाले सारे आमाल जो जवारिह में जाएंगे, आज़ा में जाएंगे, फिर उनसे आज़ा जो आगे अमल करेगा वो आज़ा भी बिल्कुल ठीक अमल करेंगे। और अगर इसके अंदर फसाद आ गया तो सारे आज़ा और जवारिह उनमें भी फसाद आना शुरू हो जाएगा। अब दिल कैफियत और हालत के एतबार से इसकी कैफियत मुख्तलिफ होती रहती हैं। कभी एक कैफियत है, कभी दूसरी कैफियत में होगा, कभी इसके अंदर
नेकी की जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कभी वो हल्का पड़ जाएगा। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका मशहूर वाक़या है हाँ, कि उन्होंने कहा कि दिल की इन कैफियत को देख के जब अपने बीवी बच्चों में गए, घर में गए, तो उन्होंने कहा नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया हाँ। और ये बात जब उनके दिल के अंदर एक खटका से पैदा हुआ, निकल के बाहर आ गए, और बाहर आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे मुलाकात हुई। वो कैफियत बयान की, अल्लाह के नबी की मजलिस में होते हैं, हमारी दिल की कैफियत बिल्कुल अलग होती है, अपने बीवी बच्चों में जाते हैं, कैफियत बदल जाती है। इस वजह से मुझे ये एक शुबा सा हो गया है कि मेरे अंदर मुनाफिकत तो नहीं आ गई। वहाँ पे और होती है कैफियत, यहाँ पे आके और होती है कैफियत। तो इस बात ने मुझे परेशान कर लिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी तो पैकर इखलास और खलीफा खिलाफत बनने वाले थे। उनको भी ये चीज़ कहा आए अल्लाह के नबी की मजलिस में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने सवाल को रखते हैं हाँ। दोनों हज़रात हुज़ूर इस्लाम के पास आए और अपनी पूरी बात रख दी कि दिल की कैफियत हमारी बदलती रहती है, यहाँ की मजलिस में और है, अपने भी बच्चों में जाते हैं, अपनी मजलिस में बैठते हैं तो कैफियत बदल जाती है। हमें इस बात का डर पैदा हो गया है कहीं ये मुनाफिकत तो नहीं है, कहीं ये मुनाफिकत तो नहीं है, तो इस वजह से हम आपके पास आए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आपके दिल की कैफियत हमेशा एक जैसी रहे तो फिर साफा मलाइका फरिश्ते आपसे मुसाफा करें। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने एक बात ये भी समझा दी, ईमान की कैफियत के अंदर ये कमी बेशी बसा औकात आती रहती है। कभी ईमान तरक्की करके बहुत ऊंचा चला जाता है और कभी थोड़ा कम हो जाता है। और इसमें उलमा ने एक बात लिखी है, ईमान की कैफियत उम्मत के अफराद में कम व बेश होती रहती हैं। इस पे मुख्तलिफ उलमा ने अबवाब मुरतब किए हैं, क्योंकि एक ईमान है अंबिया का जो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता रहता है, एक ईमान है फरिश्तों का जो एक सतह पे कायम है, और एक ईमान है उम्मतियों का जो कभी बढ़ जाता है, अल्लाह के कलाम को सुना उससे मुतासर होके ईमानी कैफियत बहुत बढ़ जाती है बसा औकात। और बसा औकात ये ईमानी कैफियत ऐसी मजालस में जो कि गुनाह की महफिल हैं उनमें जाने से, या जो बिल्कुल आवारा किस्म की महफिल हैं उनमें जाने से ईमानी कैफियत पे असर पड़ता है और ये कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आपके ईमान की कैफियत खंजला हमेशा एक जैसी रहे तो फिर ये तो फरिश्तों का ईमान है, फिर फरिश्ते आपसे मुसाफा करें। तो बहरहाल दिल की कैफियत, दिल के ऊपर 6 किस्म की हालात हैं। अबू बकर वर्राक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसानी दिल के ऊपर 6 किस्म की हालतें तारी होती हैं। नंबर 1 हयात, नंबर 2 मौत, नंबर 3 सेहत, नंबर 4 बीमारी, नंबर 5 बेदारी और नंबर 6 गफलत। ये हालात इंसान के दिल पे लाजमन तारी होती हैं। अब इंसानी दिल की हयात और ज़िंदगी क्या है कि इंसान का दिल ये हिदायत को कबूल कर ले, इंसान का दिल ये हिदायत को कबूल कर ले, इंसान का दिल ये हिदायत को कबूल कर ले, ये इंसान के दिल की हयात है। और मौत और ज़लालत ये क्या है, इंसान का दिल हक को कबूल न करे, हिदायत को कबूल न करे, तो ये इंसान के दिल का मुर्दापन हो जाना है, यानी मर जाना है इंसान के दिल। हयात हो हिदायत व मौत हो ज़लाला, गुमराही इंसान के दिल की मौत है और हिदायत इंसान के दिल की हयात है। इंसान के दिल के अंदर जब हिदायत आ जाती है, ये इंसानी दिल हिदायत के नूर से मुनव्वर हो जाता है तो फिर ये ज़िंदा हो जाता है। और अगर इंसान के दिल के अंदर ये हिदायत न हो और गुमराही और ज़लालत हो तो ये बिल्कुल बेजान और मुर्दा है। और जब दिल की ज़लालत इंसान के अंदर, यानी दिल के अंदर, इंसानी दिल के अंदर ज़लालत और गुमराही आनी शुरू हो जाए तो इसका इलामत ये होती है कि ये बुराई की तरफ माइल होता है। और जब हिदायत हो तो ये बुराई से नफ़रत करता है। फिर तो इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा,
मुनाफिकीन की, काफरों की हालत बयान करते हुए, जहन्नमियों की पहचान करवाते हुए अल्लाह ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल तो हैं लेकिन वो समझते नहीं, हिदायत को कबूल नहीं करते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनके पास आँखें तो हैं लेकिन उनकी आँखें हक की बात को देखती नहीं हैं। वलहुम आज़ानुन, उनके पास कान हैं, ला यस्मऊन बिहा, ये जो हिदायत वाली बात है, इंसानी दिल की ज़िंदगी वाली बात है, उसको वो नहीं सुनते। उलाइका कल अनहाम, ये तो चौपायों की तरह हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि चौपायों से भी बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये तो गफलत में पड़े हुए हैं, ये नाबीना हैं, इनके दिल नाबीना हो चुके हैं। एक है इंसान की आँखें, ये देखना छोड़ दें, ये काम करना छोड़ दें, इनकी बसारत चली जाए। आँखों की बसारत का चला जाना ये इतना ख़तरनाक नहीं है जितना इंसान के दिल की बसारत ख़त्म हो जाए, हक बात को कबूल करना इंसान का दिल ये छोड़ दे, ये जितना ख़तरनाक है। दूसरी चीज़ है इंसान के दिल पे बीमारी का लायक हो जाना और इंसान के दिल की सेहत। अब इंसान के दिल की बीमारी क्या है? शिर्क, कुफर, निफाक, ये सारी की सारी चीज़ें इंसानी दिल की बीमारियां हैं। ये इंसानी दिल को मर्ज़ में मुब्तला करने वाली चीज़ें हैं। और इसके मुकाबले में इखलास अगर कामिल है, अखलाक हसना है, अक़ायद सहिया हैं, तो ये इंसानी दिल की तंदुरुस्ती और सेहत है। अब इंसानी जिस्म जिस तरह बीमार होता है, इसी तरह इंसानी दिल भी बीमार होता है। जिस्म बीमार हो, इलाज के लिए इंसान डॉक्टर के पास जाता है, दिल बीमार हो जाए तो इलाज के लिए इंसान को अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए और अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। अब अगर इंसान का जिस्म बीमार हो जाए, इलाज न हो तो क्या होगा? इंसान पे मौत तारी आएगी और इंसान कब्र तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इसी इंसान का दिल बीमार हो और इसका इलाज न हो तो इंसान जहन्नम के गड्ढे में जाके गिर जाएगा। तो इसलिए इंसान को जिस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इसी तरह अपने दिल की सेहत का, अपने रूहानी तौर पे सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी को अल्लाह ने बयान फरमाया है, इंसानी दिल तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, तो इसको अल्लाह ने बयान फरमाया है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। इंसानी तंदुरुस्त दिल जो आएगा उसको तो क़यामत के दिन फ़ायदा भी पहुँचेगा और वो जन्नत के अंदर भी जाएगा। और अगर बीमार दिल के साथ आ गया, हाँ, जिस तरह फरमा दिया गया है, पहले पारे के शुरू में भी फरमाया है कि इनके दिलों के अंदर रोग है, दिलों के अंदर मर्ज़ है, इस मर्ज़ के साथ आ गया तो ये इंसान हमेशा हमेशा के लिए नाकाम होगा। इसी तरह दिल की एक गफलत और उसकी बेदारी भी है। अब ज़िंदा दिल और सेहतमंद दिल हो और इस पे बसा औकात गफलत का पर्दा पड़ जाता है और गफलत का पर्दा पड़ने की वजह से ये इंसान गुनाह की तरफ राग़िब हो जाता है, गुनाहों में मुब्तला हो जाता है और इसके दिल की कैफियत ये जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है, मैला और गंदा होना शुरू हो जाता है दिल। और इसी तरह इसको गफलत से बेदार रखने के लिए अल्लाह का ज़िक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ने ख़ुद भी फरमाया है कि दिल को इत्मीनान, चैन और सुकून और राहत ये तभी मिलती है जब वो अल्लाह के ज़िक्र के साथ हमेशा मशगूल रहे। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस नबवी है कि उसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं कि हर चीज़ के लिए, सफाई के लिए कोई ना कोई चीज़ मुकर्रर होती है, सैकल होती है, रिगमाल होता है, और इंसानी दिल की सफाई के लिए अल्लाह का ज़िक्र है और ये इसको बेदार रखने का ज़रिया भी है। दूसरी एक रवायत बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, उसके अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शैतान इंसान के दिल के साथ चिपका होता है और अगर इंसान अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है, उसका दिल बेदार होता है, गफलत में नहीं होता, तो ये शैतान पीछे हट जाता है। और अगर उसका दिल गफलत में मुब्तला हो गया, हल्का सा भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया, तो वो इंसान के दिल के अंदर फ़ौरन वसवसे डालना शुरू कर देता है और
وسوسے گمراہی کے ڈالنا شروع کرتا ہے، طرح طرح کے وساوس اس کو آنے لگتے ہیں، پھر وہ ہدایت سے بھٹکنے کے لیے ہر ایک حربہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد رکھے، اپنے دل کو بیدار رکھے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ بیدار رکھنے کی وجہ سے ہی انسان شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین پہ پورے طور پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔